Hi, I'm Harsh Jangra. Welcome to MCITP Network Infrastructure video series. In this series, we are going to cover all the fundamental topics related to network infrastructure deployment, configuration, and the designing. So in that one, very first we have is IP addressing. जैसे कि आप जानते हैं, IP addressing is not a small part. So that's why मैंने IP addressing को कुछ various different part में divide किया है. So today we are going to cover only the part one with the introduction of IP addressing and few related things. So let's jump back on IP addressing and start working on it. The very first we have decimal to binary. So guys, decimal to binary का meaning क्या है, or you can say the binary to decimal. Exactly, this is, of course, we talk about some conversions because human being and computer same way में हर चीज को calculate नहीं करता है. I mean to say, I write down here as you can see decimal, but definitely this decimal you can read, but आपका computer उसे binary में ही understand करेगा. So the in the same case IP addressing में भी कुछ ऐसा ही होता है. So we will look up on that. Don't worry about it. The second thing is how subnet masks work. That is one of the very important part. Definitely there are default subnet mask is available, and आगे जाके आपके next video में हम cover करेंगे custom subnet mask also. What is it all about? उसका use क्या है और क्यों करेंगे हम उसे? So that we will definitely discuss. The third thing is address classes. The address classes, guys, is very important because there's an organization name is IANA. IANA ने IP addressing को डिजाइन किया है, उसको डिस्कवर किया है, या यू कैन से इंट्रोड्यूस किया है. सो इन दैट केस उन्होंने IP addresses को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज. So we will talk about that all also in this video. And the last part is the private addresses. I'm sorry. In the private addresses is actually what is a concept that आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर स्कूल है, कॉलेजेस है, whatever is going on behind the firewall, जो firewall के बैक साइड में जो IP एड्रेसेस काम करते हैं, not over the internet, उन्हें हम प्राइवेट एड्रेसेस कहते हैं. सो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. So guys, the very first thing that we have a topic is called the decimal to binary. Of course, I want to discuss one thing for you कि human और हमारा जो लाइक कंप्यूटर है वो डेफिनेटली दोनों सेम वे में किसी भी चीज को कैलकुलेट नहीं करता या अंडरस्टैंड नहीं करता है. सो इन दैट केस आईपी एड्रेसिंग में भी कुछ ऐसा ही है. मैं आपको एक एग्जांपल, एक नंबर दिखाऊंगा. प्लीज ट्राई टू बी अंडरस्टैंड दैट एंड टेल मी इन 3 seconds कि उसका मतलब क्या है. सो आर यू रेडी? 1 2 3. गेट इट? नो गाइस, एक्चुअली आई अंडरस्टैंड दैट ये आपको ही नहीं समझ, मुझे भी ये समझ डायरेक्टली एकदम देखने से नहीं आएगा. डेफिनेटली आई ऑल्सो हैव टू बी टेक अ लुक फॉर अ वाइल, एंड उसके बाद ही मैं समझ पाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. गाइस, दिस इज द वे दैट योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड. डेफिनेटली ये वो आपकी डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इट्स अ बाइनरी नंबर्स, या तो ये 0 है या ये 1 है. तो डेफिनेटली आपकी कंप्यूटर इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बट हम लोग इसे अंडरस्टैंड करते हैं इन अ डेसिमल वे. सो दैट आई विल शो यू एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली राइट नाउ. बट से पहले लेट्स देख ही लीजिए आप एक बार. तो जो ये ऊपर आपको नंबर दिख रहा है 223.172.16.31, इट इज द सेम वे हेयर. बट गाइज, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आईपी एड्रेसिंग, जो ये आपने एक नीचे आपको बाइनरी नंबर्स दिख रहे हैं, इनको 4 फेजेस में डिवाइड करना है. बिकॉज 1 फेज में 8 ऑक्टेट्स होंगे, दैट मीन्स 8 बिट होंगे. सो यू कैन सी, तो आईपी एड्रेसेस को डिवाइड किया जाता है इन द 4 ऑक्टेट्स. सो like this: 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8. So guys, this is the way कि जिसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी द नंबर. यहां पर जो आप नंबर देख रहे हैं 223, एग्जैक्टली वो ये है. सो कैसे कन्वर्जन किया, मीन्स ये कैलकुलेशन किसके बेसिस पे हुई है. So for that reason, guys, we have a concept is called decimal to binary or binary to decimal concept. उसके लिए उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक कैलकुलेशन मेथड डिजाइन किया है. So most of the people know about it. So I want to share it with you. I already copy here for you. So just I will show you, and you can see right now.
दैट उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द पॉइंट. सो गाइस, सेम आईपी एड्रेसेस को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 223, 172, 16 एंड 31 मैंने यहाँ पे सेम किया है. तो उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है. कैसे गाइस? एज यू नो, बाइनरी में या तो 0 होगा या 1 होगा. यहां पर 0 का मतलब है फॉल्स कह सकते हैं, या 0 का मतलब है ऑफ, और 1 का मतलब है ट्रू, और यू कैन से ऑन. सो मतलब जो हमारी वैल्यू है, जहां पर 1 आपको दिख रहा है, वहां की जो वैल्यूज है वो टर्न ऑन है, जिसका मतलब है हम उसको कैलकुलेट करेंगे. ओके, क्लियर? सो 0 जहां पर है उसकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. सो दैट्स वाई अगर ये आप यहां पर आप देख सकते हो ऊपर कुछ नंबर यहां पे लिखे हुए हैं 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. अगर ये सारी वैल्यूज में मैं यहां पर 1 1 डाल दूं तो ये टोटल वैल्यू मैक्स टू मैक्स बनेगी 255. सो दैट्स वाई जितने भी आपके नंबर्स हैं जो आईपी एड्रेसेस कवर किए जाते हैं, या तो वो 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम 255 तक ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो राइट नाउ एज यू सी वी हैव अ नंबर 223. सो 223 को कैसे कैलकुलेट किया जाए? सो यहां पर कुछ वैल्यूज हैं, यू कैन सी द टर्न ऑन. यहां पर मैंने पहले उसे कन्वर्ट कैसे किया बाइनरी में, तो यहां पर देखते हैं 128 प्लस 64 इट इज इक्वल टू 192. अगर मैं 32 वैल्यू ऐड कर देता हूं तो वो 223 से ज्यादा हो जाएगी. तो दैट्स वाई मैंने यहां पर अपनी वैल्यू को टर्न ऑफ कर दिया है. सो आई कैलकुलेट अनदर वैल्यू जो उससे नेक्स्ट वैल्यू है, दैट इज 1. अब मैं ये प्लस करूंगा, देन सेम वे 8 को, देन 4 को, देन 2 को, देन 1 को. जब ये सारी चीजें मैं कंबाइन करूंगा, लाइक 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, बिकॉज 32 0 है इसलिए उसे कैलकुलेट नहीं करना है. सो उसको जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू 223. इन द सेम वे 172, 128 प्लस 32 प्लस 1 प्लस 4 प्लस, कोई प्लस नहीं है, सब 0 है. सो दिस इज द 172 ऑफ कोर्स, एंड 16 एज यू कैन सी. कुछ लोग अगर आप यहां पर देखेंगे तो कुछ लोग इसमें से कंफ्यूज हो जाएंगे. एज यू कैन सी, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. यहां पर आप देखेंगे तो कुछ लोग पढ़ेंगे इसे 10,000, बट गाइज ये 10,000 वैल्यू नहीं है. दैट मीन्स जो टोटल 8 बिट में से जो हमारे फोर्थ, बिकॉज हम कैलकुलेट करते हैं यहां से, सो टोटल जो फिफ्थ प्लेस पे है फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, तो जो उसकी वैल्यू टर्न ऑन है, यू कैन सी 1 2 3 4 5. सो दैट्स वाई वो कंसिडर किया जाएगा ओनली 16 में. एंड 31 ऑफ कोर्स मैं 32 नहीं ले सकता बिकॉज इट इज द बिगेस्ट नंबर, बिग नंबर देन 31. सो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को मैं अगर ऐड करूंगा यू विल गेट द 31. So I hope you get some idea about this. So this is the way to convert the binary to decimal and decimal to binary. So do one thing, किसी भी IP address को लेकर आप उसे try करना decimal से binary में convert करने की. So using the this calculation method 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. So आपको उसके बारे में idea लग जाएगा. Now guys, we have a second part is called how subnet mask work. Guys, there's a point. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर एक आईपी एड्रेस मैंने मेंशन किया हुआ है 223.172.16.31. टेक एन एग्जांपल, मेरे कंपनी में एक फाइल सर्वर अवेलेबल है. वो फाइल सर्वर में मेरे पास कुछ डेटा है एंड आई वांट टू एक्सेस दैट डेटा फ्रॉम माय कंप्यूटर. जब भी मैं उसे एक्सेस करूंगा तो डेफिनेटली आई हैव टू गिव द यूनिक लॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ दैट कंप्यूटर. मैंने क्या बोला? यूनिक लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अनदर कंप्यूटर, दैट इज नथिंग बट एन आईपी एड्रेस. मैं सामने वाले कंप्यूटर का जो मेरा फाइल सर्वर है उसका आईपी एड्रेस दूंगा और मैं जो डेटा एक्सेस करना चाहता हूं मैं एक्सेस भी कर लूंगा. बट गाइज ये हमें तो ठीक है, हम लॉजिकली वी कैन अंडरस्टैंड, बट हाउ योर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो कंप्यूटर जिससे वो कम्युनिकेट करने वाला है वो सेम रेंज में है, दैट मीन्स सेम नेटवर्क में है या किसी दूसरे नेटवर्क में है. दैट्स अ बिग क्वेश्चन. सो हाउ एग्जैक्टली वो अंडरस्टैंड कैसे करता है? सो मैं उसको ही कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. सो फॉर दैट रीजन बेटर वी शुड डू वन थिंग. आई विल शो यू वन डायग्राम and in this one you can see very well I have some of the few routers are connected just for actually this is the way. और ये मेरे कुछ पर्सनल नेटवर्क जो मैं जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ वहाँ पर, तो कुछ एक इसी तरह का ये एक सेटअप है वहाँ पर. हमारी कंपनी में टोटल 7 राउटर्स हैं. आई टेक ओनली 3 here, but no problem, no need to worry about this all part. The concept is मेरा जो IP एड्रेस है आप यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस एंड इसको वैल्यू को यहाँ रख लीजिए. और यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट डिजाइन करके रखा है. इज दिस फॉर द सबनेट मास्क.
द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली द सबनेट मास्क गाइस? आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस, दिस इज माय आईपी एड्रेस, यानी इस आईपी एड्रेस के बाद में मैंने एक /24 ऐड किया है। एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या है? यहां पर हमारी 24 बिट टर्न ऑन होंगी। सो दैट्स वाई आप देख सकते हैं यहां पर हमारी जो फर्स्ट 24 वैल्यू है, बिकॉज ये ऑक्टेट है, हमारे पास 4 ऑक्टेट हैं, 8 + 8 + 8, so this is 24. So exactly जो 24 बिट्स है वो मेरी टर्न ऑन है। That's why the value become 255.255.255.0. So guys, ये वैल्यू बनती है सबनेट मास्क की। So you can identify by using subnet mask that this IP address is in class C. डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट इट, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये क्लास सी में है, बिकॉज कुछ रेंजेस डिवाइड हैं, उनके बेस पे मैंने ये पता किया, बट राइट नाउ नो नीड। गाइस, जब भी कोई कंप्यूटर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, इन फॉर इंस्टेंस राइट नाउ, फॉर एन एग्जांपल, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक आईपी एड्रेस है 223.172.16.2, इट इज द सेम आईपी एड्रेस ऑन दिस साइड। एंड यहां पर एक और आईपी एड्रेस है 223.172.16.128। Consider this is my file server, this is FS. So guys, यहां फाइल सर्वर मेरे पास कुछ डेटा है, मुझे कुछ डेटा एक्सेस करना है। So I send a request over the network कि where is this IP address. So कैसे वो कैलकुलेट करता है? तो पहले तो वो हम जानते हैं, उसके बाद कैसे ये वर्क करता है that we will discuss right now. सो गाइज, यहां पर वो कैलकुलेट कैसे करता है? जो भी आपका आईपी एड्रेस है उसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए, बिकॉज कंप्यूटर ओनली कैन अंडरस्टैंड बाइनरी, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट, सेम इन दैट केस आपके सबनेट मास्क को भी जो भी वैल्यू यहां पर आप दिख रही है ऑल्सो कन्वर्ट इनटू बाइनरी। नाउ यू कैन कैलकुलेट, बिकॉज आपका कंप्यूटर उसे कैलकुलेट करता है टू फाइंड आउट द नेटवर्क। जैसे कि हम देख रहे हैं 1 + 1 शुड बी 2, राइट? बट गाइज, बाइनरी में ऐसा नहीं होता है। बाइनरी में अगर 1 + 1 करते हैं तो वो 1 ही होता है, और जहां पर अगर 1 + 1 में मीन्स जो भी कैलकुलेशन में कहीं पर भी 0 आ जाता है, और जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ दिस इज 0 एंड दिस इज 1, तो वैल्यू वो ऑटोमेटिकली 0 ही बन जाती है। सो दैट मीन्स इफ यू बिकॉज जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, कीप रिमेंबर, अगर दोनों तरफ वैल्यू 1 1 है, टर्न ऑन है, सो यहां पर भी वैल्यू 1 ही आएगी, और किसी भी जगह 0 हुआ तो वो 0 हो जाएगी। तो दिस इज द रिजल्टेंट नेटवर्क फॉर 223.172.16.2/24। ये इसका रिजल्ट है, इसके नेटवर्क आईडी। कंसिडर दिस इज द नेटवर्क, दैट्स इट। आप जस्ट कंसिडर कर लीजिए, दिस इज आवर नेटवर्क आईडी। सो गाइज, ये जो नेटवर्क आईडी अभी आपने देखा, दिस नेटवर्क आईडी को अब उसको कम्युनिकेट करना है 223.172.16.128 को। सो यहां पर भी मैंने यहां पर सेम आईपी लिया है 223.178.16.120 मींस आई एम सॉरी 172.16.128/24। सो गाइस, सबनेट मास्क सेम है। सो सेम मैंने कन्वर्जन किया आईपी एड्रेस का। एज यू कैन सी लास्ट पार्ट में यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये डिफरेंस क्या है इसका एंड इस वैल्यू का। यू कैन सी वेरी क्लियरली दोनों में लास्ट वैल्यू का डिफरेंस है, एंड लास्ट वैल्यू है 0, एंड दिस इज कॉल्ड होस्ट आईडी। जो सामने लास्ट जो आप देख रहे हैं 0, दिस इज कॉल्ड होस्ट आईडी। सो दैट मीन्स वो कुछ भी हो, वी डू नॉट केयर। सो दैट्स वाई मैंने यहां पर कन्वर्ट किया, एंड जब उन दोनों को कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट निकाला, सो द रिजल्ट ऑफ बोथ, you can see right now, result of both network IDs are same. जब नेटवर्क आईडी सेम होते हैं तो आपका कंप्यूटर ये कंसीडर करता है इट इज इन माय सेम नेटवर्क, एंड वो डायरेक्टली डेटा एक्सचेंज या एक्सेस कर लेता है फॉर द बोथ साइड। देन यू आर अबाउट टू कनेक्ट डायरेक्टली। आपको मीन्स यू डू नॉट नीड टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन। बट गाइस, now the next example, you can see the third IP address as I have right now, and शायद आप जानते ही होंगे कि who knows very well about network administration कि this IP address is not in the same network. तो guys, exactly मैंने same calculate किया, and finally जब calculate करने के बाद value आया, so values are become like this, and इन दोनों वैल्यूज में जो नेटवर्क आईडीज की वैल्यूज हैं उनमें एक ही डिफरेंस है। यू कैन सी इन द लास्ट वन यहां पर 0 है और यहां पर 1 है, सिर्फ एक बिट का या एक ही डिजिट का आपको चेंजेस दिखेगा। बट गाइस, कंप्यूटर अगर एक बिट को भी
वो सेम मीन्स अगर वो वैल्यू सेम नहीं होती हैं, सो आपका कंप्यूटर ये अंडरस्टैंड करता है या उसको खुद को ये बोलता है आई डोंट नो अबाउट दिस आईपी एड्रेस, हु इज दैट गाय। सो एग्जैक्टली आपका कंप्यूटर डिफॉल्ट गेटवे को यूज करके, आपके कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेसिंग डिफॉल्ट गेटवे में होता है, उस आईपी एड्रेस को यूज करके वो रिक्वेस्ट सेंड कर देता है जो भी राउटर का आईपी एड्रेस होता है, बिकॉज डिफॉल्ट गेटवे में हम राउटर का ही आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे। देन द रिक्वेस्ट गोज टू राउटर। जब वो अपने पर्सनल राउटर से पूछता है डू यू नो हु इज 223.172.17.254, देन ये राउटर कहता है आई एम सॉरी माय डियर, आई डोंट नो, लेट मी आस्क। तो ये राउटर सामने वाले राउटर को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि प्लीज टेल मी डू यू नो अबाउट दिस आईपी एड्रेस। देन ये कहता है लेट मी चेक। वंस यू फाउंड द आईपी एड्रेस, बिकॉज डेफिनेटली इट इज इन द सेम नेटवर्क, ये दोनों एक सेम नेटवर्क में है एज यू कैन सी, तो कहता है ओ आई गेस यू आर लुकिंग फॉर दिस आईपी एड्रेस ऑफ दिस सर्वर और कंप्यूटर। जब ये इस लोकेशन को फाइंड आउट कर लेता है एंड देन यू विल गेट एक्सेस व्हाटएवर यू वांट टू एक्सेस। सो गाइस, इस तरीके से आईपी एड्रेसिंग काम करता है बिहाइंड द सीन। एग्जैक्टली हमें इतना ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेना है, बट I mean still we should know about it very well. So I guess you should get the idea कि कैसे कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करता है कि आपका कंप्यूटर सेम नेटवर्क में है तो वो उसे डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा, अगर नहीं है सो ही विल आस्क फ्रॉम द नियर बाय राउटर्स जो उसके आईपी एड्रेसेस को जानते हैं, चाहे वो सेम नेटवर्क में ही क्यों ना हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव राइट नाउ is exactly called IP addressing, that address classes. So guys, for the address classes I have something for you. ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वेरी सिंपल एंड टू वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है। तो गाइज एज यू कैन सी आईपी एड्रेसेस को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है। एक्चुअली इट इज नॉट ओनली क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, देयर आर क्लास डी ऑल्सो एंड देयर आर क्लास ई ऑल्सो। क्लास डी इज यूज फॉर मल्टीकास्ट, क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए यूज की जाती है, एंड क्लास ई फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पज। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल पर्पज या स्टिल इज नॉट यूजिंग राइट नाउ इन आवर नेटवर्क, तो वो यूज करते हैं। बट मोर ओवर मोस्टली आपको क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी ही यूज करने को मिलेगी इन योर ओन लाइफ। सो गाइस, दिस इज द वे। इन द क्लास ए उन्होंने डिवाइड किया है फ्रॉम द नंबर 1.0.0.0 से लेकर 126.0.0 और 126.255.255.255 तक की रेंज क्लास ए में कंसीडर की जाएगी, एंड दिस इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर दिस होल रेंज। एंड इस रेंज के अंदर टोटल 126 नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हैं इस पूरी रेंजेस में, एंड विद द होस्ट 16, आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू है, 167777214। सो इट्स सच ए ह्यूज अमाउंट। इतने कंप्यूटर्स आप एक नेटवर्क में आप ऐड कर सकते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट 126। फॉर द क्लास बी उन्होंने 128 से लेकर 191 तक की रेंज उन्होंने सिलेक्ट की है, एंड दिस इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क। इन दिस रेंज यू कैन क्रिएट 16,384 this networks and 65,534 host आप एक नेटवर्क में क्रिएट कर सकते हैं। For the same in class C, I guess you are very familiar with 192 range. So 192 range -223.0.0.0 तक आप ये रेंज यूज कर सकते हैं, and exactly this is the default subnet mask. Guys, ये मैंने लिखा ऐसे है, but you can use up to 223.255.255.254. So don't be confused, but just remember इन values के बीच में ही यूज किया जाता है, and this is you can create not a few, it's so many network you can create in this class C, but only the point is you can connect only 254 hosts in one network. Keep remember. Now the very important thing about the class A, you can see यहाँ पर 127 नहीं है। So वो क्या है? Guys, 127 is used for loop back adapter, and exactly this is the range, the complete, or you can see the complete range for 127.255.255.254 तक की जो values हैं वो consider की जाती है in the loop back adapter. That means total
16,77,214. So that many values यूज की जाती है so इसके अंदर. और guys क्या यूज है, कुछ लोग इसे यही पढ़ते हैं कि भाई लूप बैक एडेप्टर इज स्पेशल यूज. हम इंडिया में यही सिखाते हैं या बहुत सारे टीचर यही सिखाते हैं कि दिस इज यूज फॉर टू चेक वेदर योर लैंड कार्ड इज वर्किंग और नॉट, कि आपका लैंड कार्ड काम कर रहा है कि नहीं. बट गाइस दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. 127.0.0 जो रेंज है that is dedicated to loopback addresses. That is true. But loopback addresses क्या करता है? I will show you. First, as you can see right now, I am connected with the. First, I will show you कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. It's very important. In my case, you can see this is my IP addresses. And यहाँ पर एक डिफॉल्ट गेटवे है and this is my DNS address 221.228.255 and something. Definitely ये मेरे सेम नेटवर्क में नहीं है, but if I'm trying to communicate, मैं communicate करने की कोशिश करूँगा 221.228.255.1. तो मुझे यहाँ पर it should be means given by reply, means मुझे reply आना चाहिए, but यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको request timed out आ रहा है because ये रेंज हमारे रेंज में नहीं है. दिस इज इन द डिफरेंट रेंज. बट गाइज नाउ यू कैन सी दिस इज 228.255.1. मैं यहां पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मेरे पास अगर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन अगर वर्क कर रहा हो सो यहां से पिंग आएगा ही आएगा. सो कीप रिमेंबर दिस वर्ड. ओके, द सेकेंड पॉइंट थिंग इज अगर मुझे कन्वर्ट करना है, टेक एन एग्जांपल 127.0.0.1 मैं पिंग करूंगा तो डेफिनेटली मुझे क्या रहा रिप्लाई. गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नेटवर्क, मेरा मतलब लैंड कार्ड वर्क अच्छे से कर रहा है. इसका मतलब है जो आईपी एड्रेस स्टैक है, दैट मीन्स उसका जो एक लोड होता है, जो आईपी एड्रेसेस जहां पर आप फिल करते हैं आईपी एड्रेसेस, जब वो प्रॉपर्ली लोड होता है तब आपको ये रिप्लाई देता है. एंड दिस इज नॉट ओनली दिस, इट शुड बी व्हाटएवर 128.254.12 व्हाटएवर. आपका कुछ भी हो, वैल्यूज आपको रिजल्ट वही मिलेगा, आपको रिप्लाई ही आएगा. सो दैट्स व्हाट इज द फॉर यूज फॉर लूप बैक एड्रेसेस. सो नाउ द लास्ट ऑप्शन इज वी हैव द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस. गाइस द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हमेशा फायरवॉल के बैक में ही काम करते हैं. यू कैन नॉट यूज द प्राइवेट एड्रेसेस ओवर द इंटरनेट. सो दैट्स वाई आप बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होंगे जो स्पेशली हमारी नेटवर्किंग में है. क्योंकि ये जो आईपी एड्रेसेस की रेंजेस आप देख रहे हैं, यूजुअली हम अपने किसी भी शॉप के अंदर कह लीजिए या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कह लीजिए, कॉलेजेस में स्पेशली 192.168 की रेंज मैक्सिमम यूज की जाती है. सो दीज आर द रेंजेस यू कैन यूज फॉर योर पब्लिक एंड यू डू नॉट हैव टू पे एनी मनी टू एनीवन. सो दैट्स व्हाई ये आप जितना मर्जी चाहें, इवन आप देख सकते हैं कि 167 मिलियन आप क्लास ए में आईपी एड्रेस कनेक्ट कर सकते हैं. तो आपका कितना भी बड़ा नेटवर्क है, यू कैन यूज दिस ऑल आईपी एड्रेसेस रेंजेस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू डू नॉट हैव नीड टू पे एनीवन anything. Okay, so that's why these are the private IP addresses and you should know very well about the ranges in IP address, private IP address. In rest of the IP addresses are called public IP addresses and वो internet पे use होते हैं, जो इनके अलावा हैं, जो इनसे different हैं. Okay, now guys, the next part is we have in the next video we have a custom subnet mask. Custom subnet mask क्या है? For an example right now you can see कि मेरे पास ये नेटवर्क है, यहाँ पर मुझे एक कंडीशन है मेरी कंपनी की कि मुझे 50 कंप्यूटर ऐड करने हैं और उस 50 कंप्यूटर में मुझे 4 नेटवर्क डिजाइन करने हैं. सो ये सब मैं कैसे वर्क करूंगा और कैसे डिजाइन करूंगा, सो यू विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. सो गाइज स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. आई विल राइट बैक एंड आई विल कम बैक एंड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. टेक केयर. इन शॉर्ट.